Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first and the most important one for the day would be regarding the sad demise of former Prime Minister Shri Manmohan Singh ji. तो उनके बारे में we have to learn. We will look into his achievements and his prowess, his political prowess, his career. We have to look into that. Second is regarding monetary policy committee, and they have said that the monetary policy has reduced the demand. So we will look into the implications of reduction of demand. मैं इसमें आपको थोड़ा सा concept भी समझाने की कोशिश करूँगी. So ये वाला topic आज के लिए आपके लिए important रहेगा. And 13 next is 17 children receive award for exceptional achievement. तो यहाँ पे बाल पुरस्कार अवार्ड जो है वो दिया गया है by honorable president of the country. So ये तीनों न्यूज़ जो है आज के important है. एक एक करके सारे न्यूज़ को देखते हैं. First and foremost is regarding the sad demise of former Prime Minister Shri Manmohan Singh ji, and at the age of I think 92 he passed away. Yes, at the age of 92 he passed away. He was a very dynamic leader, a very visionary, a very great economist, and India had, because you might have known that 1992 LPG reforms was brought by him under his finance ministership, and in the PV Narasimha Rao government. So he was a visionary economist, he was a learned personality, and you know the things, the economic knowledge that he had, you know, was of great importance, and a finance minister so learned was really important, because the reforms that were much awaited was brought under his prime ministership, and you know a very dynamic leader with, you know, multiple good decisions that were taken under his prime ministership. So we will analyze the things, and we will look into his achievements also in the coming slides. Okay. Born in 26th of September in 1932 in Gah village in Punjab, his family belonged to Sikh community. He was in 1932 he born in the Gah village of Punjab province, which is in now present day Pakistan. Okay, so he was from the Sikh community. His parents were Gurumukh Singh and Amrit Kaur. After completing schooling primarily in Urdu medium, his family migrated to Amritsar post partition of India. So basically they were from Pakistan. After the independence they migrated to India. ठीक है. He continued his education at Hindu College Amritsar and Punjab University, and completed its bachelor's and master's in economics in 1952 and 1954. तो 1952 and 1954 में he completed his economics का degree from Punjab University. ठीक है. Then he completed triplos in economics from St. John's College in Cambridge. So वो one of the first, you know, learned personalities थे after, you know, India got its independence, कि वो कैम्ब्रिज जाकर उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स पे डिग्री जो है उन्होंने लिया था. After returning to India, Singh served as a teacher at Punjab University. Following that, he went to Oxford University to earn a doctorate in philosophy and completed the same in 1962. So 1962 again you would see his academic excellence कि वो फिर से वो ऑक्सफोर्ड गए. He completed his doctorate in philosophy and then he came back. ठीक है. And he also published a research titled India's Export Performance 1951-1960 Export Prospects and Policy Implications. So in 1960s only he wrote a thesis, he wrote a research named India's Export Performance 1951 to 1960. In 1972, he was appointed to the Ministry of Finance as the Chief Economic Advisor. In 1972, he was appointed as the Chief Economic Advisor. 1976, he took charge as the Secretary to the Finance Ministry. So, आप देख पाएंगे कि साल दर साल due to his academic excellence in economics, he was firstly taken as the Chief Economic Advisor to the Finance Ministry, and then he became the Secretary of the Finance Ministry. His unmatched expertise and knowledge in the economic discipline subsequently reflected in his career growth also, right? 1982 he worked with planning commission that drew 5-year plans. So 1982 mein he also worked with, you know, the planning commission, and he drew the 5-year plans. 1982 he was appointed as the governor of RBI of India and continued the post for next 3 years. So 1982, 1983, 1984. For 3 years he was the
Governor of RBI. In 1985, he became the part of Planning Commission as Deputy Chairman and continued till 1987. Following that work, he worked with Geneva-based economic policy think tank South Commission in 1990. So not only he worked in India, but various platforms जो not सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उन्होंने ये बहुत सारे जो कमीशन है वहाँ पर भी उन्होंने काम किया. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया 1990 इन्होंने क्या काम किया एज ही वर्कड एज एन एडवाइजर टू द देन प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ही वर्कड एज एन एडवाइजर टू the then Prime Minister. He became a chairman of UGC University Grants Commission in 1991. 1991 में he became the chairman to UGC. His career took an unexpected turn with an invitation from the Prime Minister of India, P.V. Narasimha Rao, to join the cabinet as the Finance Minister. Now we are talking about this. The 1992 LPG reforms जो है अभी इस समय आने वाला था. सबसे worst economic crisis हुआ था जब से इंडिपेंडेंस हुआ है 1991 में. 1991 में इसी समय जो है गल्फ वॉर भी चलने लगा था, उसके वजह से ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, रेमिटेंसेस जो है वो फॉल हो गए और इंडियन वर्कर्स जो है वो भी कुछ पैसे नहीं भिजवा पा रहे थे. फिस्कल डेफिसिट वाज अराउंड 8% ऑफ जीडीपी. वेरी वेरी बिग नंबर. ठीक है, मतलब 8% होना आपका फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है इट मस्ट बी अराउंड 3%. ठीक है, ये कैप है, लेकिन इस समय पे 8% के आसपास जो है जीडीपी का 8% हमारा फिजिकल डेफिसिट था. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमारे पास उतने मतलब बैलेंस ही नहीं बचा था कि हम 6 हफ्ते और इंपोर्ट करा सकते थे, इतना ही हमारे पास बैलेंस था. तो और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 3.5% ऑफ द जीडीपी एंड फॉरेन रिजर्व जो है मात्र $1 बिलियन बाकी था. सो ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आया था. इसी के कारण 1992 में एलपीजी के रिफॉर्म्स को लाए गए जिसने हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ओपन अप कर दिया. ठीक है, सो as a part of deregulation of the economy, the federal government under Manmohan Singh reduced the control of the state on the economy and reduced import tax. तो क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा regulated economy था, तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के कारण जो है हमारा इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गया एंड हमारा कनेक्शन विद अदर कंट्रीज वाज नॉट दैट मच गुड. तो इसीलिए हमें ओपन अप करना ही पड़ा हमारा इकोनॉमी को. इन एडिशन द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद आरबीआई अंडरटुक डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी टू मेक एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव. तो हमने क्या किया, हमारे जो वैल्यू है हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, अगर जैसे पहले क्या हुआ, मे भी ऐसा होता होगा कि ₹1 इज इक्वल टू $1. ठीक है, तो अभी इसको घटा के मे बी अब ₹1 से $1 वुड बी नाउ फ्रॉम ₹0.5. ठीक है, तो ये आपने डी वैल्यू कर दिया, अपने पैसे का वैल्यू को कमा दिया. नाउ इट बिकम्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव. कैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव? अभी अगर यहाँ पर पहले क्या मिल रहा था हमें, ₹1 में लेट्स से 2 एप्पल्स हमें मिल रहे थे. ठीक है, ₹1 में हमें 2 एप्पल्स मिल रहे थे. नाउ विथ डीवैल्यूएशन अगर हमने जो है वैल्यू कमा दिया, ठीक है, ₹1 में हमें लेट्स से ₹1 में 1 ही एप्पल मिल रहा था. अब हमें अभी एक ही डॉलर में अभी हमें 2 एप्पल्स मिलेंगे, राइट? क्योंकि हमने अपने पैसे के वैल्यू को कमा दिया. वी हैव करोडेड द वैल्यू ऑफ मनी. नाउ व्हेन वी अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू गेट वाज 1 एप्पल इन $1. ठीक है, $1 में हमें 1 एप्पल मिला करता था क्योंकि एक एप्पल का प्राइस कितना था, ₹1 था. ठीक है, तो ₹1 में हम अगर कोई बाहर से खरीदने के लिए आएगा, जब दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा, ₹1 इज इक्वल टू $1, तो $1 इज इक्वल टू ₹1 जब ये वैल्यू रहेगा तो आपको कितना एप्पल मिलेगा? ऑब्वियसली 1 एप्पल मिलेगा क्योंकि 1 एप्पल कॉस्ट ₹1. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्योंकि अपने वैल्यू ऑफ रुपी को अपने डेप्रिशिएट कर दिया, अपने डी वैल्यू कर दिया. नाउ कितना है, $1 इज इक्वल टू ₹0.5. नाउ हाउ मेनी एप्पल्स विल यू गेट इन $1 में? कोई अगर बाहर से खरीद रहा होगा $1 में उसे कितने मिलेंगे? ऑब्वियसली 2 एप्पल्स मिलेंगे. तो इसके कारण क्या होगा, जब आप वैल्यू को कम कर देते हैं, जब आप वैल्यू को कमा देते हैं, व्हाट विल हैपन इज आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. ठीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव का मतलब अब आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा दूसरी कंट्री आपसे ज्यादा परचेज करेगी. ठीक है, तो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव जो है ये हमारा हो गया ड्यू टू डीवैल्यूएशन ऑफ मनी. ये तो बेसिक्स है जो मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ. ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स जो है ये आया, प्राइवेटाइजेशन हुआ पब्लिक सेक्टर का, बहुत सारे रिडंडेंट जो यूनिट्स थे उनको हम लोगों ने सेल ऑफ कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आने लगे, सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला. ठीक है, इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल जो है वो ग्रोथ भी होने लगा. हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3% से 8 to 9% होने लगा.
पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब हमारे लिबरलाइजेशन का पॉलिसीज जो है उसके बाद इतना इंक्रीज होने लगा. सो ये सारे, उसके बाद अगेन ही वॉज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, ये तो हमने उनके एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में बात की. उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने 2004 से 2014 तक. ठीक है, तो 2 टर्म का उनका चीफ मिनिस्टरशिप था. तो ये काफ़ी अच्छा चला इस समय, यूपीए का सरकार था इस समय. एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड उसके बाद भी ही वॉज द राज्यसभा मेंबर. तो काफ़ी ज़्यादा, एंड टिल नाउ ऑल्सो ही वॉज ट्राइंग टू अटेंड दी राज्यसभा मीटिंग्स. तो कभी कभी वो चले जाते थे इन इज व्हील चेयर ओनली. सो ये काफ़ी सारे उनके सक्सेस, इनके काफ़ी सारे प्रावेस थे जो आपके इकोनॉमिक, आप बैकग्राउंड में इनके देख सकते हैं. इनके जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो बिल्कुल यहाँ पर उनका प्रूफ होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ लेफ्ट अस. सो दिस वॉज हिज all the excellence that he had, and he had much more to offer to the country. So this was regarding him. We can move to the next topic. The next topic is regarding RBI's monetary policy. Now what is happening is slow demand. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो क्या कहा है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कारण क्या है, डिमांड जो है ये स्लो हो गया है. ठीक है, इन्होंने ये कहा है, किन्होंने कहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात कहा है. ठीक है, अब देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स एंड मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स बाय द आरबीआई may have contributed to the demand slowdown in the economy. ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पर आपको थोड़ा चीज समझाती हूँ. ठीक है, अभी लेट्स थिंक ऑफ समथिंग. ठीक है, हम थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड थोड़ा सा मन की आंखों से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अभी क्या होता है कि लेट्स से मेरे इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि देयर इज वन डिबेट बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, ये ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली काम ये है, दिस इज अ वेरी बहुत काइंड ऑफ एक बहुत पतली सी एक रेखा है. ठीक है, आपको ये समझना होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का बॉडी का काम क्या है कि ये जो 2 चीज है, 2 वेरिएबल्स है, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों को मेंटेन करना है. क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लिम्जी ग्राउंड है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कारण, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन से मेंबर्स होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपके आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, एंड आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में किसके मेंबर्स होते हैं? गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं. राइट, ये हमने पढ़ा है कि आरबीआई के भी मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं. गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट, व्हाट डज गवर्नमेंट वांट्स? गवर्नमेंट वांट्स ग्रोथ इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट क्या चाहती है? ऑब्वियसली आरबीआई भी चाहती है, लेकिन मोटा अगर आप देखें, गवर्नमेंट वांट्स ग्रोथ इन द इकोनॉमी. What does RBI wants? RBI wants lesser inflation. ठीक है, RBI wants lesser inflation. ठीक है, ये दोनों का अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो मतलब मैं आपको रफली समझा रही हूँ. What does government wants? Government wants good growth, and यहाँ पर क्या है, RBI wants lesser inflation. लेकिन हमने क्या देखा है कि जितना ग्रोथ होता है ना, उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होने लगता है. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? जब आप डिमांड करेंगे. ठीक है, ग्रोथ इज नथिंग बट डिमांड. ठीक है, डिमांड जब आप क्रिएशन करेंगे, डिमांड क्रिएशन से क्या होता है? ग्रोथ होता है. ठीक है, आज मेरे इकोनॉमी में अगर हम 100 शर्ट बना रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? 100 शर्ट अगर 100 रुपए करके भी है, इट विड लीड टू 10,000 रुपीज. यस या नो? 10,000 रुपए का मेरा पूरा इकोनॉमिक आउटपुट है. ठीक है, पूरा इकोनॉमिक आउटपुट कितना है? 10,000 रुपए का. अब यहां पर क्या है, जब मैं 100 शर्ट बनाती हूँ, आई हायर लेट्स से 10 वर्कर्स. ठीक है, मैं 10 वर्कर्स को हायर करती हूँ. 10 वर्कर्स 100 शर्ट बनाते हैं, 10,000 रुपए का मेरा इकोनॉमिक आउटपुट है. ठीक है, अब क्या होगा, जब मेरा डिमांड क्रिएशन होगा, जब मेरा डिमांड अगर हम बढ़ाएंगे, अब हम लोग डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमने क्या सीखा, डिमांड से ग्रोथ इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर मेरा डिमांड, मुझे क्या करना है, अपना इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ाना है कि नहीं? इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ाना है. यहाँ पर इकोनॉमिक आउटपुट हम कैसे बढ़ाएंगे? जब हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे. राइट, प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब डिमांड इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये एक साथ मिला हुआ है. नाउ आई वांट कि मेरा इकोनॉमी अब 100 शर्ट के जगह 150 शर्ट बनाए. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट इज 150 शर्ट आई वांट. ठीक है, तो 150 शर्ट नाउ
इफ आई वांट कि वो 100 रुपए से अगर अगेन मैं बेचूं, देन कितना हो जाएगा मेरा इकोनॉमिक आउटपुट वुड बी 15,000 रुपीज, है ना, 15,000 रुपीज, राइट। मैं कब बनाऊंगी एज अ सेलर, मैं कब बनाऊंगी 150 शर्ट, जब इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड होगा। आप खुद सोचिए, अगर आप एक सेलर है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप तभी कोई चीज या कोई प्रोडक्ट, कोई गुड अगर क्रिएट करेंगे, कब करेंगे, जब आपके पास मार्केट में डिमांड हो। अगर डिमांड ही नहीं है शर्ट्स का, व्हाई वुड आई गो एंड इन्वेस्ट माई मनी एंड लॉस, हैव अ लॉस, राइट। अगर इकोनॉमी में डिमांड है तभी मैं इतना जो है इसको अफोर्ड कर पाऊंगी कि मैं 150 शर्ट्स एक्स्ट्रा बनाऊं। नाउ 150 शर्ट्स अगर मैं बनाऊं तो यहां पर क्या होगा, ये 10 वर्कर्स काम नहीं आएंगे, आई वुड नीड मोर वर्कर्स, राइट, मोर वर्कर्स। तो मोर वर्कर्स क्या होगा, जब यहां पर मोर वर्कर्स, आई वुड नीड 5 मोर वर्कर्स, है ना। एक एग्जांपल आपको दे रही हूं कि आई वुड नीड प्लस 5 वर्कर्स, यहां पर मतलब आई वुड नीड 15 वर्कर्स, 15 वर्कर्स। अब इन 15 वर्कर्स की सैलरी भी जाएगी, है ना। ये 15 वर्कर्स है, ये फ्री में तो मेरे लिए काम नहीं करेंगे, आई वुड नीड टू गिव देम सैलरी, आई वुड नीड टू गिव देम सैलरी, राइट। तो जब मैं सैलरी दूंगी, देखिए यहां पर ग्रोथ हो गया, मेरे इकोनॉमी का ग्रोथ हो गया, यहां पर हमने 5,000 रुपए इंक्रीज कर लिया, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में 5,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सैलरी देने के कारण नाउ द वर्कर्स विल हैव, वर्कर्स के पास क्या है, वर्कर्स के पास क्या है, नाउ व्हाट डज वर्कर्स हैव, वर्कर्स हैव एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा हाथ में आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, ये आपको यहां तक होपफुली समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पर हमने क्या समझा कि लोग, अब क्या है, मेरा इकोनॉमी में आउटपुट ग्रोथ ज्यादा हो गया है, उसके कारण सैलरी इंक्रीज हुआ है, मतलब ज्यादा लोगों को मैं हायर कर रही हूँ, ज्यादा लोगों के पास ज्यादा मनी चला गया है। अब व्हाट डज दिस ज्यादा मनी वुड लीड टू, अब ज्यादा मनी लोगों के हाथ में है, दिस वुड लीड टू योर इन्फ्लेशन। कैसे इन्फ्लेशन होगा, अगेन मैंने इन्फ्लेशन बहुत बार यहाँ पर समझाया है। इन्फ्लेशन से कैसे होगा, मेरे पास अभी कितने हैं, 50 रुपए है मेरे पास, अब एक्स्ट्रा मनी है तो मतलब 50 का 100 हो गया। नाउ आई वुड डिमांड मोर, डिमांड मोर क्रिएशन से क्या होता है, डिमांड मोर क्रिएशन से क्या होगा, अगर मेरे पास क्या है, पैसे ज्यादा है, आई वुड डिमांड मोर, डिमांड मोर से आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होने से ग्रोथ तो होगा। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, ग्रोथ के साथ साथ तो इन्फ्लेशन आ रहा है। जितना इकोनॉमी ग्रो करेगा उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से क्या होगा, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, एम्प्लॉयड होने से क्या होगा, दे वुड हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड। व्हाट विल दैट एक्स्ट्रा मनी हैव इट, मतलब उस एक्स्ट्रा मनी से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, कि जैसे जैसे ग्रोथ होगा उतना उतना मेरा प्राइस लेवल इंक्रीज होते रहेगा, उतना उतना इन्फ्लेशन होते रहेगा। सो नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई का काम है कि ये जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन को यहां कंट्रोल करने का काम है आरबीआई का। क्योंकि ऑब्वियसली हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी बहुत बार रिवाइज किया है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ने पे हमने क्या समझा कि आरबीआई का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है कि इन्फ्लेशन को कम करना। इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, जब हम थोड़ा सा ग्रोथ को मॉडरेट तरीके से जब हम लेके जाएंगे तभी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर न्यूज में क्या आया है, ये पूरा समझाने का क्या काम था मेरा, यहां पर क्या बोला है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या किया है, स्लो डाउन कर दिया है इकोनॉमिक, स्लो डाउन क्या कर दिया है डिमांड में। अब डिमांड कम करेंगे तो क्या कम होगा, ग्रोथ कम होगा, ठीक है, ग्रोथ कम होगा। अगेन अगर आपको फिर से समझना हो तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वहां पर क्या है कि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट ये इतने से समझाने से नहीं होगा, यू गाइज हैव टू लर्न द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इन नेचर है, तो आपको ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कैसे ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, हमने फिलिप्स कर्व को बहुत बार डिस्कस किया है, 2-3 दिन पहले भी हमने फिलिप्स कर्व को डिस्कस किया था कि कैसे फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप दिखाता है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस यहां पर की है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंसेस की वजह से यहां पर क्या हुआ है, डिमांड में स्लो डाउन आया है। डिमांड स्लो डाउन तो क्या होगा, ग्रोथ स्लो डाउन, आउटपुट स्लो डाउन, तो ये जो है गवर्नमेंट के लिए थोड़ा बुरा दिखता है, इसीलिए आपको जीडीपी भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यहां पर आरबीआई ने बोला था कि हमें थोड़ा कम करना है इन्फ्लेशन, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, उस पर चेंजेस लाया गया था। दो द रिव्यू असर्टेड दैट देयर आर गुड रीजन
to believe that the outlook of growth is better than second half of the year than it has been through April and September when GDP rose to 6%. मतलब हमारा जो पहला ये जो सेकेंड क्वार्टर था, ठीक है, अप्रैल से सितंबर तक, इट वाज काइंड ऑफ अ मिड, बहुत उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमारा नहीं था, ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ होगा, जीडीपी का ग्रोथ होगा, जीडीपी इज नथिंग बट दिस ग्रोथ, ओके, ये आउटपुट जो है इसी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी का हम बात करें, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ होगा साथ में ही इन्फ्लेशन रहता है, तो वो दोनों को बैलेंस करना इज वेरी वेरी टफ टास्क, ठीक है। अब वो क्या है, एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ये क्या है, हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एफआरबीएम एक्ट में हमारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स है, मीडियम टर्म्स गोल्स है, ये सबको हमें कंट्रोल, वो हमारे इन्फ्लेशन को बेसिकली यहाँ पर कम करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ इन इकोनॉमी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशन को कम करना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलाइजिंग एक्सचेंज रेट, ये सब मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी। ये बस एक एस्पेक्ट नहीं समझा है, इट वुड टेक मी लॉट मोर ऑफ टाइम, ये मैं आपको कभी और किसी क्लास में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया ना कि हमें ग्रोथ भी चाहिए, हमें इन्फ्लेशन को भी कम करना है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, और साथ ही हमें क्या करना है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, हमें प्राइसेस को भी कम रखना है, हमें ग्रोथ भी चाहिए। तो ये बहुत काइंड ऑफ एक डिफिकल्ट टास्क है फॉर दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दो टाइप के स्टैंसेस रहते हैं, पहला होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड दूसरा इज कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, आपको वर्ड से लग रहा होगा कि हम अपना जो पूरा मॉनेटरी जो सर्कल है उसको हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट पुश देता है, स्टिमुलस देता है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, इंजेक्ट करता है, जो मतलब हमारे पूरे सिस्टम है उसमें मनी को इंजेक्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मनी जो है सक आउट हो जाता है फ्रॉम द इकोनॉमी, उसके वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो समटाइम्स व्हाट द गवर्नमेंट डज इज कि वो इंजेक्ट करते हैं, मनी को इंजेक्ट करता है, ठीक है, मनी, वो फिस्कल एक स्टिमुलस देने की कोशिश करते हैं, कौन, गवर्नमेंट। अब ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे जीडीपी कैलकुलेशन में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे गवर्नमेंट का रोल रहता है जीडीपी में। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तब आपको उसमें समझ में आएगा, ठीक है। कैसे ये काम करते हैं एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, याद रखिएगा, इंजेक्टिंग मनी, इंजेक्ट कब कर पाएंगे, जब हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट्स को कमाएंगे, इंटरेस्ट रेट हम लोग लोअर करेंगे, तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तो आप और मैं क्या समझेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट कम है, लेट अस गो एंड टेक सम मनी, थोड़ा मनी लेते हैं लोन पे और उसके बाद अपना कुछ बिजनेस बड़ा करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो मनी बहुत ज्यादा फ्लो करने लग जाता है इन द एंटायर मार्केट। उसके बाद क्या है, बैंक्स का जब रिक्वायरमेंट, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, सीआरआर को जब आप कमा देंगे, ठीक है, रेपो रेट को जब आप कमा देंगे तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी रहेगा तो वो इंजेक्ट करते हैं इन दी मार्केट। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट से, मैं अगर आपसे कुछ आपका एक सिक्योरिटी खरीदूं, ठीक है, मैं अगर आपसे आपका सिक्योरिटी खरीदूं, आप मुझे क्या देंगे, वो सिक्योरिटी देंगे, मैं आपको क्या दूंगी, पैसे दूंगी ना। मैं बैंक हूं, आप गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपसे मैं अगर सिक्योरिटी खरीद रही हूं, मैं आपको क्या दे रही हूं, पैसे दे रही हूं, राइट, मैं आपको पैसे दे रही हूं, अब वो पैसे आप कहाँ लगा सकते हैं, इन दी मार्केट। तो ये इसमें क्या होगा, अगेन इंजेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आप बिजनेस को स्टिमुलेटिंग दे रहे हैं, आप टैक्स कमा रहे हैं, ठीक है, आप इंसेंटिव ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, एक्सपेंशन होगा पूरे सिस्टम का, ठीक है। ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसको हम लोग डॉविश स्टैंस भी कहते हैं, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसमें आप पैसे को सक आउट कर रहे हैं, आप पैसे को, आप एक्स्ट्रा मनी को नाउ यू आर सकिंग आउट। इसमें क्या होगा, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ऑब्वियसली लोगों के पास पैसे कम होंगे, आप रिक्वायरमेंट, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज कर देंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो आपका क्या होगा कि जो बैंक से नाउ दे वुड गिव लेस मनी, तो पैसा जो है वो सक आउट होगा। आरबीआई क्या करेंगे, नाउ आरबीआई विल सेल दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमारे पास अभी आपने मुझे दिया, मैंने पैसे दिए, नाउ आई वुड सेल दी गवर्नमेंट बॉन्ड, तो मैं आपको वापस दे दूंगी, तो आई वुड गिव दी बॉन्ड टू यू, यू वुड गिव मी बैक दी मनी, राइट। तो क्या होगा, मैं पैसे को मैंने सक आउट कर लिया है। इसका काम क्या है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे रिड्यूस होगा, अगेन व्हेन यू वुड हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, ये एक्स्ट्रा मनी के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ, इन्फ्लेशन को कमाना जो है, दिस इज द वर्क ऑफ आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है।
तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा. आई हैव ट्राइड टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. ठीक है, थोड़ा कम समय में आई हैव ट्राइड टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लास्ट न्यूज फॉर द डे, 17 चिल्ड्रन रिसीव एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड. ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है अवार्ड जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है 17 बच्चों को दिया है. इसमें से 10 गर्ल्स है एंड 7 बॉयज है. ठीक है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर दिया गया है अवार्ड जो है 17 चिल्ड्रंस को दिया गया है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सेलिब्रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इन 7 कैटेगरीज. 7 कैटेगरीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कैटेगरी है? आर्ट एंड कल्चर है, ब्रेवरी है, इनोवेशन है, साइंस एंड टेक है, सोशल सर्विस है, स्पोर्ट्स है, एनवायरमेंट्स है. ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 बच्चों को 7 बच्चों में से 17 बच्चों में से 7 आर बॉयज एंड 10 आर गर्ल्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो बहुत सारे जो है ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक जिसमें बच्चों ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है उसमें उनको अवार्ड दिया जाएगा. अ चाइल्ड शुड बी एन इंडियन सिटीजन. पहला तो ये है रिक्वायरमेंट कि उनको एक इंडियन सिटीजन होना होगा. दूसरा क्या है, बच्चे को 5 साल से लेकर 18 साल के ईयर होना चाहिए. ठीक है, 5 to 18 ईयर्स का होना होगा, तभी उनको ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया जाएगा. द एक्ट इंसिडेंट अचीवमेंट शुड हैव बीन विद इन 2 years ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन नॉमिनेशन ऑफ द ईयर ऑफ कंसिडरेशन. आज से आज आप अपना जो है अगर आप अपना नॉमिनेशन फाइल करें, आज अगर आप फाइल करें तो उससे 2 साल पहले तक आपका ये अचीवमेंट होना होगा, तभी आपको ये अवार्ड मिलेगा. Number of award will be 25. However, any relaxation to the maximum number may be permitted at the discretion of National Selection Committee. वैसे generally 25 awards दिए जाते हैं, पर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं. Each awardee will receive a medal, a certificate and a citation booklet. ठीक है, तो ये सारे उनके awards हैं. तो ये आप याद रखेंगे कि 17 बच्चों को जो है क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया है. ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये भी समझ में आ गया होगा. ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू.